Hello and welcome back to the lesson. I hope everybody is doing well and you guys are watching the world go by. Back to the task explaining the IELTS reading module. Today is the first very day and we're going to have an introductory class about the IELTS reading actually. अच्छा हमारे पास IELTS reading क्या है? And to talk about the toughest modules of IELTS. Reading जो है इसमें थोड़ा सा challenging है. It is quite very much challenging. Is that clear? Okay, when we talk about the receptive skills, तो हमारे पास receptive skills में जो है हमारे पास reading और listening आता है. Is that clear? Reading and listening is there. Is that clear? हमारे पास क्या है? Reading और listening है. And when it comes to productive skills, जब हम productive skills की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है writing और speaking है हमारे पास, kidding? Writing and speaking is there. So there are two categories that when it comes to go for the real test, you are going to face two categories actually. Receptive skills, which are two in number, that is reading and listening, or productive skills जो हमारे पास है writing or speaking. Productive skills जो है all around they are quite difficult because उसमें all around जो इंडिविजुअल है उसको सब कुछ जनरेट करना पड़ता है. अगर आइडिया जनरेशन का काम हो या फॉर एग्जांपल उसके पास जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का काम हो, उसका लेंथ हो, उसका फ्लो हो, उसका जो है उसके पास जो स्टफ हो, मटेरियल हो, ऑल अराउंड सीक्वेंस हो, कनेक्टिविटी हो, जितना भी मतलब लिखने के लिए जितने या बोलने के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो स्किल्स होते हैं, जो स्टफ्स मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऑल अराउंड इस बंदे ने खुद जनरेट करना पड़ता है. बट व्हेन इट कम्स टू द रिसेप्टिव स्किल्स में आपको रेडीमेड चीज़ दिए होते हैं और आपने इसमें क्या करना है, यू हैव टू चूज द राइट थिंग, यू हैव टू गो. नाउ ऑल अराउंड हमारे पास जो है आईएलटीएस रीडिंग की हम बात करेंगे आज, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होते हैं. रीज़न क्या है, वो कुछ सीक्रेट्स को जाने बगैर टेस्ट में अपेयर हो जाते हैं, जिससे उनकी जिसकी वजह से उनके बैंड्स में वो जो उनके रिक्वायर्ड बैंड्स होते हैं वो नहीं ले पाते. तो व्हेन इट कम्स टू go for an introduction to the IELTS reading task, we have 1 hour, जो हमारे पास 60 minutes होंगे इस टेस्ट में. We have 60 minutes for this reading test of IELTS. 60 minutes means 1 hour is there. And we have 3 passages given in IELTS reading task. Getting a note? IELTS reading task में जो हमें 3 passages दिए होते हैं. 1 घंटे में 3 passages or all around 40 question को answer देना. Whoa! Do you think is it challenging? Is it challenging? Yes, sir. What do you think? Yes. Is it challenging? Yes. I don't really think so. It's challenging because when it comes to understanding the basic, the very much the requirements for the reading and some of the hidden mistakes, some of the hidden leakages that you have when you come across filling all those and solving all those problems, you won't face problem in IELTS reading. जिसमें जो है हमारे पास असल में समझना है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में करना क्या हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास पैसेज है. अब पैसेज कहते हैं किस चीज़ को, हमें जो है 3 पैसेजेस दिए होंगे. इन 3 पैसेजेस में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पैसेज क्या है, नॉर्मल पैसेज जो आईएलटीएस रीडिंग टास्क में आपको मिलेंगे उसमें जनरली 6 to 8 पैराग्राफ्स होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 like 6 to 8 paragraphs are expected to be there in IELTS reading passages. Getting 3 passages आपको दिए होंगे. Getting तो इन ये जो पैसेज बनता है, it is actually the collection of paragraphs. It is made of paragraphs. पैसेज जो हमारे पास है किस चीज से बनता है, it is made of paragraphs. हमारे पास किस चीज से, पैराग्राफ्स से बनता है भाई. Getting on order, it is made of paragraphs. Now what is a paragraph? हमारे पास पैराग्राफ क्या है? Paragraph is a group of sentences that gives a specific idea, that gives us specific statement. Is it clear? हमारे पास पैराग्राफ जो है group of sentence that represents a specific statement, a specific idea. तो all around आपको जो है 6 to 8 पैराग्राफ्स को मिला के एक पैसेज बनता है. Is it clear? आपके पास गुड पैराग्राफ क्या है, जो only one idea को represent करता हो. A good paragraph represents only one idea, represents only
one idea. Getting a note guys, it represents only one idea. अगर एक पैराग्राफ में मिक्सचर दिया गया आपको, मतलब एक पैराग्राफ जो है मुख्तलिफ स्किल्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, so that is not supposed to be a good paragraph because एक पैराग्राफ जो है एक आइडिया के बारे में बात करेगा. फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ की बात करेंगे, जब हम राइटिंग टास्क में आएंगे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ. हमारे पास क्या है, ये एक पैराग्राफ है, ऊपर जो है टॉपिक सेंटेंस में जो है टेक्नोलॉजी की बात की गई है, टेक्नोलॉजी की बात हो गई है, नीचे जो है जो सपोर्टिव रीजन इसके लिए शेयर हुए पैराग्राफ में, तो दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटी या सोशलिज्म. तो इट इज नॉट अ गुड पैराग्राफ. एक पैराग्राफ जो है एक ही टॉपिक सेंटेंस को कैरी करते हुए एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम द वेरी टॉप टू द एंड, कैरिंग अ प्रॉपर प्लॉट फुल ऑफ स्पेसिफिक आइडिया दैट रिप्रेजेंट्स वन स्टेटमेंट ओनली. कितने नोट गाइस आपके पास ये है. तो एक पैसेज में जो है 6 to 8 पैराग्राफ्स होते हैं नॉर्मली, और एक पैराग्राफ जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. अब एक पैराग्राफ में एटलीस्ट आपके पास 8 to 12 सेंटेंसेस या 8 to 12 लाइंस होनी चाहिए. गुड पैराग्राफ आपके पास ऑल अराउंड 8 से 12 लाइंस होने चाहिए. मतलब होते भी IELTS में आप when you come across counting all of them, so you would come to know that there are 8 to 12 lines available in each paragraph in each passage. Okay? That's the thing. So generally हमारे पास जो है अब ऑल अराउंड एक पैसेज में आप फेस कितने वर्ड्स करेंगे, कम से कम आप 600 से 700 वर्ड्स को पढ़ेंगे. That's the thing. You have to understand and you have to keep in mind that the passage I'm going to read, it contains 600 to 700 words. So let's see whether it is challenging or not, guys. हमारे पास क्या है, जब हम सेक्शन 1 की बात करेंगे तो जनरली हमारे पास 20 मिनट्स जो है सेक्शन 1 के लिए है, हमारे पास 20 मिनट्स जो है हमारे पास सेक्शन 2 के लिए है, और 20 मिनट्स जो है हमारे पास सेक्शन 3 के लिए है. Is it clear? We have 20 minutes for section 1, 20 minutes for section 2, and 20 minutes for section 3. Do you get this or not, guys? अब for example हमारे पास 1 hour है जो कि 60 minutes बनते हैं ऑल अराउंड. 3 पैसेजेस दिए होंगे और आपके पास जो है 40 क्वेश्चंस है भाई. Is it clear? You have 40 questions. तो इन 40 क्वेश्चंस को नॉर्मली जो है आपका जो है 1 से लेके 14 तक 13 तक क्वेश्चंस एक में अवेलेबल होते हैं, फिर इसी लेके 15 से लेके जनरली आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, there's up to you may say 28 or 29 is the clear to 28 or 29 इतने क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होते हैं, और अराउंड 29 से लेके जनरली 40 तक आपके पास क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होते हैं. लाइक इट्स randomly decided normally. तो ऑल अराउंड जो आपके पास ये 40 क्वेश्चंस है, आपने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में डिवाइड होते हुए देखेंगे और आप उसको फिल करते जाएंगे. अब करना क्या है, हमने 14 क्वेश्चंस को एक एक पैसेज को वी हैव टू व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट दिए गए हैं, हमने 20 मिनट के अंदर एक पैसेज को रीड करना है. मैंने पैसेज का बता दिया कि व्हाट इज अ पैसेज. एक पैसेज को रीड करना है और उसके साथ जो हमें 14, 13, 15 क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको आंसर भी करना है. आंसर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. Is it clear? Like it could be multiple choices in shape of multiple choices, or it could be true false not given, it could be yes no not given, it could be summary completion, yes a note completion, for flow chart completion. All around you may see different question types available in all these 3 sections. Getting or not? तो हमारे पास इसी तरह 15 से कुछ 10 क्वेश्चंस आपने इसमें जो है रिस्पॉन्स करने पड़ेंगे, और नॉर्मली कुछ 10 to 11 क्वेश्चंस इसमें रिप्लेस करेंगे. So this is all a general introduction about the IELTS reading, जिसको हम ये receptive skills में आता है हमारे पास, और challenging है when it comes to talk about the when it comes to talk about the difficulty level of IELTS module. So reading comes on the second, or we can call it in the third. Depend करता है अगर एक स्टूडेंट का जो है वो मेंटल पावर या स्टोरेज उसका या उसका जो है एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो ठीक है, वो रीड करना जानता है, उसके पास विकेबलरी है, उसके पास जो है ऑल अराउंड स्पीड है, वो स्कैन के नेचर को समझता है, शॉर्टकट्स को समझता है, उसके पास फास्ट वे रीडिंग स्ट्रेटजीज है. So he or she can easily go for scoring for higher and higher in IELTS reading tasks. Did you guys get this? This is all the basic and general introduction. We're going to go to talk about some secrets in IELTS reading, and especially to know about the time management and what are the secrets behind scoring for more and more in IELTS reading. Thank you.